Mehreen Sayed, and the podcast is about me sharing my daily life experiences with you all. Though I know I'm not consistent and I feel very much guilty about that. Anyway, आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मुझे तो लगा, एंड इनफैक्ट आप सोच भी रहे होंगे कि अब लेटेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा होगा, आज कोई नई प्रॉब्लम लेकर आई होगी. Anyway, I have a friend of mine here with me. आज हम दोनों आपसे कनेक्ट होंगे. So my bestest friend, that's Ifshana, is right here. Hi Ifshana. Hello, Mehreen. So Ifshana, how is it, like, how are you feeling about being here? I know you were not ready and मैं तुम्हें बहुत ज़बरदस्ती करके यहाँ पर लाया है. So how does it feel? I was not ready. I'm not ready, but I'm still here. Actually, you know what, Ifshana? Yes. Sometimes it's like जब हम चीज़ें प्लान करते हैं और प्लान करके कहीं पर चीज़ें करने की कोशिश करते हैं ना, I think that doesn't go right. Yes, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया. Yes, yes. Have you ever heard कि जैसे लोग बोलते हैं कि यार ट्रिप प्लान करोगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं होता है. Unplanned trips are always the best. Exactly. You must have heard it, right? Yes, yes. And this is an unplanned podcast, right? Exactly. This is totally an unplanned. Like I just opened my laptop and put on the mic. Exactly. And you told me, and you told me, come here. I said, for what? You said, just come here. Yeah. Because मुझे लगता है अगर मैं तुम्हें, मतलब मुझे क्या लगता है, शायद देखो मेरे माइंड में था भी नहीं अभी तक कि देखिए we could do it together or there's a topic that we can discuss together. Yeah, we will do it together. Yeah, and but right now it's like अगर मैं इस टाइम के बारे में सोचती कि okay हम आएंगे पॉडकास्ट करेंगे, मुझे लगता है काफ़ी टाइम लगता. और राइट नाउ जो ये पर्टिकुलर मोमेंट पे था ना कि आई वाज जस्ट ओपनिंग माय लैपटॉप एंड आई कॉल्ड यू कि आजा जॉइन मी हियर, मुझे लगता है ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं हो पाता है. मतलब हमें ना काफी सोचना पड़ता है. यू विल बी, मतलब अगर मैं तुमसे पूछती कि हमें पॉडकास्ट करना, तुम्हारा पहला क्वेश्चन होता क्या टॉपिक होगा? Yes, exactly. मैं क्या बोलूंगी? I would have made lot of excuses. Yes, exactly. And I think that's why people say unplanned things are always best, right? Yes, exactly. So Mehreen, what are you up to these days? Then you better know it, right? You better know it what I'm up to these days. But still, for the audience, let me say it. As you know that I have just passed out in 2019, and since then it's like job. Graduation के बाद आप कहाँ जा सकते हो job के लिए? And the job security is not that good. Why job? You know why job? क्योंकि engineering में हमने ऐसा बना दिया कि no studies anymore. Do you feel exactly same? Obviously, I don't want to go for any further studies. In fact, I remember जब भी मुझे कोई पूछता है, is it like you don't want to go or something else? I mean, it's like let me be very honest. You don't have to go. You don't want to go. No, it's not like that. In fact, while being in engineering, I realized that I don't want to study anymore. I mean, it was too much pressure, to be very honest. It was too much pressure for me during those 4 years. Though it's like after the end of those 4 years, I have got nothing. Just a piece of paper जिस पे लिखा है कि I'm an engineering graduate. But apart from that, मेरे पास कुछ नहीं है. Degree नहीं, that's a provisional certificate. Trust, I have faced it just today. मतलब मैंने कहीं पर apply किया हुआ था and they wanted my degree. Yes. And I had to tell them, I'm sorry, I don't have the degree yet. I just have this provisional certificate. And I don't know, Ifshana, मैं तुम्हें वो provisional certificate दिखाई थी, वहाँ पर stamp नहीं है. Yeah, exactly. And I'm so confused कि क्या naturally सबकी ऐसी होती है या मेरे वाले पे वो stamp लगाना भूल गए. Then I checked mine. And there was no stamp either. There was no stamp. So, Ifshana, you tell me, what are you up to these days? I mean, what am you can share with the audience. Well, मैं अभी कुछ skills के लिए ढूंढ रही थी courses. Okay. तो I got some good courses, but अभी skills you mean कोई खाना वाना बनाने की कोई skill सीख रही हैं, कोई tailoring की सीख रही हैं? Just be more precise about it कि what skills are you talking about? Not खाना बनाने की skills. मैं खाना बनाने में कितना भी try करूँ, मैं उसको at least you're better than me, यार. Yeah, maybe I'm better than you. No, but now you're getting better than me. You were not before, actually. Exactly. Yeah. Yes, maybe. And about tailoring, तो मुझे specs लगी है तो धागा डालने में प्रॉब्लम होती है. Don't worry, तुम्हें next time अगर सुई में धागा डालना हो, you can call me, हम डाल सकते हैं साथ में. Yeah, मतलब what should I do? Like, Mehreen, come here. सुई में धागा डाल दे. Not skills like that. Skills like जो आगे आपको आपके job में आगे काम आती हैं. Okay, actually, I am late. I am too late. ये जो चीजें होती है जो इंसान को करनी होती है during his or her college days. But क्या होता है हमारे college days के during जो मुझे लगा है, जो सबको लगता है कि हम fun करने में ज़्यादा believe करते हैं. Actually, तुमने खुद ही बोल दी ये चीज़ें. I just asked you this question कि what are you up to these days? And basically, this is the topic that I wanted to discuss here. And that's why probably I got you here. Oh my God. Yes. Okay. I don't know if it's a coincidence or what. Okay. Honestly बोल रही हूँ. मतलब I don't know if it's a coincidence or what. Like मतलब I just asked you कि what are you up to these days? But the thing I wanted to talk about today in this episode was about this particular thing. How important it is to have skills while you are in your college. And when I say skills, it means you have to check out कि right now बाहर corporate sector में या market में या outside आपका कौन सा skill most
रिक्वायर्ड है, किन स्किल्स से आप राइट नाउ सर्वाइव कर सकते हो, अगर आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, अगर आपको जॉब चाहिए अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स। तो मुझे लगता है मैं आज इसी बारे में बात करने वाली थी, एंड लकीली तुमसे मैंने क्वेश्चन पूछा और तुमने मतलब मुझे अभी टॉपिक डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। एंड ऑनेस्टली बोलूं, आई न्यू इट कि तुम कहीं ना कहीं इसी मतलब मोड पे हो आज, तो मुझे पता था तुमसे बेटर इंसान कोई नहीं हो सकता इस एपिसोड के लिए। गोइंग थ्रू दिस स्टफ लाइक स्किल्स, अदर स्किल्स, सो स्किल्स के बारे में मैंने काफी पहले रिसर्च किया कि क्या करना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है आगे। काफी पहले नहीं, मुझे लगता है काफी लेट किया है। आई थिंक वी डिड इट टुगेदर, बट हम वी आर ऑलरेडी वेरी मच वी आर ऑलरेडी वेरी मच लेट, बट स्टिल यू नो इट्स बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट देन नेवर, exactly. राइट नाउ। एक्चुअली यू नो व्हाट, तुमसे बेटर ज़्यादा कोई जानता भी नहीं इस चीज़ को। व्हाइल वी वर इन आवर कॉलेज वी नेवर रियलाइज्ड कि जो हम थ्योरी पढ़ रहे थे, जो चीज़ें हम इंजीनियरिंग में वो प्रोवाइड कर रहे थे, वी नेवर थॉट दैट दिस वोंट बी इनफ, बिकॉज ऑल वी हैड इन आवर माइंड वाज दैट विल बी गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब आफ्टरवर्ड्स, विल बी अप्लाइंग फॉर JEE. So you know, I chose civil engineering and you chose electrical engineering, probably because we felt at that time कि these are the two branches that are going to offer us jobs at the end of the degree. मेरे लिए तो ऐसा था, मुझे लगा शायद मैं इंजीनियरिंग खत्म करके निकलूंगी तो जॉब लग जाएगी। एज इन जैसे मुझे बताया गया था कि सिविल चूज करो तो आपको जो JEE के पोस्ट निकलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो आपको मज़े से आपको जॉब मिल जाएगी। तो थ्रू आउट द टाइम लाइक आई विल से अप टू 2 or 3 years मेरे को दिमाग में यही था कि यहाँ से निकलूंगी तो JEE की पोस्ट तो आराम से क्रैक करूंगी। और मेरा इलेक्ट्रिकल इसलिए था कि नो मतलब जम्मू एंड कश्मीर में सेकंड प्रेफरेंस इलेक्ट्रिकल को दी जाती है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स। तो मुझे लगा उस टाइम मुझे सिविल जहाँ पे मिल रही थी वो कॉलेज बहुत दूर था, मुझे लगा मैं उधर नहीं जा पाऊंगी, एंड मुझे लगा कि सेकंड प्रेफरेंस इलेक्ट्रिकल अगर जाएगी तो कल को जॉब मिलने में आसानी होगी ना, गवर्नमेंट जॉब। यू नो, जब हम कॉलेज में थे और जब मैंने बीड देखी और अपने कॉलेज में, फिर तू इमेजिन कर जो रेपुटेटेड कॉलेज है, हम तो एक मतलब आई वुड से लोकल कॉलेज बोलते हुए बुरा लग रहा है, बट हम एक लोकल कॉलेज में थे। एंड अब समझ आ रहा है कि JKCT हैड नो वैल्यू। जो हमने क्रैक किया था उस टाइम पे, उस एग्जाम की कोई वैल्यू थी ही नहीं। तो ऑलरेडी इंजीनियरिंग में तो बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है। वेल एक्चुअली दिस पॉडकास्ट इज इन अबाउट जस्ट कि हम इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली इट्स अबाउट कि मतलब मैंने क्यों चूज़ किया, तुमने क्यों चूज़ किया, एंड व्हाट आर वी फेसिंग राइट नाउ। जब वहाँ से मतलब डिग्री खत्म हो गई एंड राइट नाउ आई एम सीइंग दैट सैचुरेशन एंड द कॉम्पिटिशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, कि जो मुझे सपने दिखाए गए थे कि तुम्हारी बाद में JEE में पोस्ट लग जाएगी, दैट इज टोटली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी, एटलीस्ट फॉर मी। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट फॉर मी इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि I'll be cracking a JEE post here in Jammu and Kashmir, जहाँ पर कंपटीशन इतना ज़्यादा है, जॉब्स बहुत कम है और सैचुरेशन इतनी ज़्यादा है। एग्जैक्टली। और हम नॉन सीरियस स्टूडेंट्स के लिए, जो हम नॉन सीरियस स्टूडेंट्स थे कॉलेज में, तो इनके लिए नॉट इनके लिए लाइक हमारे लिए तो इम्पॉसिबल हो जाता है फिर ऐसे लाइक गवर्नमेंट जॉब्स क्रैक करना, बिकॉज हम वो कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते हैं हार्ड वर्किंग में, यू नो। Exactly. Even if I feel कि there were few students in every batch, you know, या every class जो बहुत ज़्यादा सीरियस थे, यार उनको भी डिफिकल्टी हो रही है राइट नाउ जॉब पाने में, बिकॉज कितनी जॉब्स है हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स, और इतना ज़्यादा यूथ है, एंड इफ एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि उसको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो काम कैसे चलेगा, नहीं हो सकता। अब तुम हमारे UT का देख लो, आई थिंक अभी थोड़ी जॉब्स आई है लाइक बैंक जॉब दैट एंड दे विल बी विथड्रॉन टाइम टू टाइम, डोंट वरी अबाउट दैट। इनफैक्ट मैंने कल ही एक नोटिफिकेशन पढ़ी जहाँ पर लिखा था कि JKSSB ने कुछ पोस्ट विड्रॉ की है, एंड समबडी हैड पुट अ कमेंट आउट देयर कि भाई हमारे पास, हम अनएम्प्लॉयड लोगों के पास जो है 200-250 रुपए होते हैं, वो भी तुम फॉर्म में भरवा देते हो, फिर फॉर्म विड्रॉ करते हो, फिर अगले साल फिर फॉर्म निकालते हो, फिर पैसा लेते हो और कभी एग्जाम करते नहीं हो। मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे मैसेज करके जब भी हमारी बात होती है फ्रेंड्स की, तो मतलब दे आस्क मी एवरी टाइम कि तुमने कौन सा गवर्नमेंट फॉर्म भरा है, लाइक तुमने बैंक का फॉर्म भरा और कौन सा पोस्ट था, लाइक अकाउंट असिस्टेंट। एग्जैक्टली, अकाउंट असिस्टेंट का फॉर्म है वो भरा, तो आई एम लाइक नो, आई डोंट नो ये फॉर्म्स कब आए, मुझे पता भी नहीं, एंड सीरियसली आई डोंट नो, मैंने कोई फॉर्म भरा भी नहीं है। मुझे पता है लाइक मैं अगर हार्ड वर्क करूं भी उसका यू नो वो फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा, अगर मैं कंसिस्टेंसी लाऊं भी आगे वो फ्रूटफुल होगा, और अगर वो फ्रूटफुल नहीं हुआ देन मेरी माइंड में रहेगा कि नो मेहनत करके भी कुछ नहीं हो रहा है। This one more thing to it, you know, our parents and in fact anyone who knows us very closely, they try to tell us to be optimistic about it, कि why are you thinking so much negative that you will be preparing for it, that there's for sure that you'll get a job, but at the same time it's about कि गवर्नमेंट के पास है क्या इतनी जॉब्स राइट नाउ। यू कैन सी जैसे JK बैंक कर रहा है कि 4 साल की पोस्ट को कभी वो क्या बोलते हैं विड्रॉ करता है, कभी दोबारा वापस दे देता है, ऐसे कर करके 4 लाख 5 लाख फॉर्म तो उनके पास हो गए होंगे सिर्फ बैंकिंग एसोसिएट और PO के लिए। तो मुझे बताओ ऐसे में सब कुछ गवर्नमेंट जॉब, अगर सबके पेरेंट्स पीछे पड़ेंगे कि गवर्नमेंट जॉब निकालनी है, गवर्नमेंट जॉब निकालनी है, तो कैसे होगा। हाँ एग्जैक्टली। और ये भी होता है लाइक अक्सर कहा जाता है कि हार्ड वर्क जाया नहीं जाती है, बट हमारी हार्ड वर्क प्रॉपरली चैनलाइज नहीं होती है। एग्जैक्टली, मतलब
मतलब it's we not should just channelize our hard work जो हम and channelize करते हैं उसको. why are we being told only just कि आपको हार्ड वर्क सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में करना है. मुझे मेरे हिसाब से 2 रीजंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज जॉब सिक्योरिटी. एज यू नो, जैसे पेंडेमिक अभी चल रहा था तो काफी प्राइवेट जॉब्स में या तो सैलरी डिडक्शन हुआ, नहीं तो एम्प्लॉयज को बाहर निकाल दिया गया. एंड सेकंड रीजन जो कि मैं हर किसी से सुनती हूँ कि क्यों गवर्नमेंट जॉब, बिकॉज दे थिंक कि प्राइवेट में बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है और गवर्नमेंट में आपको आराम है. बट यार दिस इज नॉट हाउ थिंग्स गो, राइट? अगर आपको कुछ पैसा कमाना है, अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको काम भी करना पड़ेगा. हाउ लॉन्ग वुड इट बी लाइक शर्मा जी 11 बजे निकल रहा है और 12 बजे लंच कर रहा है एंड 2-2:30 बजे वापस आ रहा है. हाँ, अगर तुम्हें याद हो तो हमारे काफी फ्रेंड्स जो बाहर गए भी एंड वो विद इन 2 or 3 months वापस आ गए. तो व्हेन वी आस्क्ड देम कि ऐसा क्यों हुआ तो क्या बोला उन्होंने कि काम प्रेशर ज्यादा है, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, काम बहुत करवा रहे हैं. बट दिस इज नॉट अ न्यू थिंग. बट देयर आर पीपल हु आर वेरी सेटल्ड यार. यस एग्जैक्टली. अगर हमें अपनी ग्रोथ चाहिए, हमारे करियर में ग्रोथ, हमारी पर्सनालिटी ग्रोथ, मतलब हमारी ओवरऑल ग्रोथ चाहिए तो हमें काम करना पड़ेगा. Exactly. Well, we'll get on to this someday, some other day. But for now, this is about what skills are presently, you know, like if you want to survive in this scenario, in this workplace environment, or in the current environment and the current world, जहाँ पे आपका जो है competition बहुत ज़्यादा है, saturation बहुत ज़्यादा है, population बहुत ज़्यादा है, plus jobs बहुत कम है. हमारी इंडिया में अभी सबसे ज़्यादा यूथ है. हाँ, exactly. youngest country. हाँ, youngest, मतलब ऐसी country जहाँ पर youth जो है youngest, जो जितनी भी population है ज़्यादा है. But not productive. Because not it's skillful. You can't blame government for it, and you can't blame any person for it. Exactly, because you know we are a developing country. तो हमें population बहुत ज़्यादा है और उसके बाद हमारे पास इतने स्किल्स भी नहीं है. एंड राइट नाउ मे बी गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट कि दे आर ट्राइंग, जैसे कि रिसेंटली इन्होंने चेंज किया है कि स्किल इंडिया. हाँ, स्किल इंडिया. एक तो स्किल इंडिया करा है और रिसेंटली इन्होंने एजुकेशन पॉलिसीज काफी चेंज कर दी हैं. हाँ, एग्जैक्टली. बट यू नो वी नीड टू डू थिंग्स ऑन आवर एंड एज वेल, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट in this podcast. Since as we both graduated very recently, so you must have seen one thing ki, as I said, that it's very difficult to get in a government job because there is very much competition and you have to be somebody who's very hard working and very consistent with your जो भी आपका जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं. बट अगर आप वो नहीं कर सकते हैं और फिर अगर आप प्राइवेट के बारे में सोच रहे हैं, you thinking that okay I was applying for or I was preparing for a government job and I couldn't have it, then I'll go for a private sector. You think that's easy? That's not easy. Exactly. Why? Because 4 साल अगर वो आपसे, जब आप कॉलेज से बाहर निकलते हो एंड यू शो योर सेल्फ एज अ फ्रेशर देयर, फ्रेशर होके भी वो आपसे पूछते हैं बताओ डिग्री सबके पास है, स्किल क्या है. Exactly. और क्या किया है, कौन सा प्रोजेक्ट किया, कौन सी इंटर्नशिप की है, कहाँ पर काम किया है, पार्ट टाइम जॉब, कोई भी एक्सपीरियंस. दिस इज वाई यू नो लाइक तुमने ये जोक सुना होगा कि बोलते हैं कि 20 साल की उम्र में वो बोलते हैं 21 साल का 40 साल से ज्यादा है, 21 साल का एक्सपीरियंस बताओ. You know, 21 साल का एक्सपीरियंस बताओ. तो दिस इज आई अंडरस्टैंड इट नाउ. जैसे सपोज वी हैव बीन अप्लाइंग करंटली एट वेरियस फर्म्स और कंपनीज, तो दे हैव बीन आस्किंग अस व्हाट यू हैव बीन डूइंग अपार्ट फ्रॉम दिस स्टडीज थ्रू आउट योर डिग्री. एंड इनफैक्ट अगर स्कूल की बात करें तो को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या किया है, यू नो. एंड मुझे लगता है उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ एक है जो मैंने नोट की है. It doesn't matter how many skills you have. It doesn't matter how much knowledge you have. Unless and until your personality is that good, you're so confident, you're so good in communication, nobody is gonna prefer you. Exactly, yes. What do you have to say about it? You know, when I was in college and during my school days, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कभी कि लाइक co-curricular activities में पार्टिसिपेट करूँगी या किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करूँगी, अपने प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करूँगी तो आगे चल के वो काम आएगा. बट मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी गलती थी मेरी, या और किसी की भी जो भी नहीं कर रहा है राइट नाउ, जिसने नहीं किया हो. You know, why do we do that? Because we are being told time to time कि करना तो तुम्हें गवर्नमेंट जॉब है. Exactly. और हमें क्या बोला जाता है कि मतलब अपने नो स्टडीज पे ही ध्यान दो, डोंट गो फॉर द करिकुलर एक्टिविटीज. हमें बोला जाता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. Exactly. But this is not the time waste, or that was not the time waste. अगर हम उस टाइम पे वो करते, वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम आती है, कहीं ना कहीं हमारी आदत बहुत सारी चीज़ों में काम आती है जो हमें आगे चल के फील होता है कि हमने क्यों नहीं किया. लाइक सब कुछ पढ़ाई नहीं होती. Exactly. I don't know who's listening to us, like probably the ones who are in jobs, or probably the ones who are in college, or probably the ones who are in school right now. But whosoever it is, अगर कोई experienced है तो वो हमारी बात को बहुत रिलेट कर सकता है. और अगर कोई ऐसा है जो प्रेजेंटली स्कूल में है या कॉलेज में है, अब उसको मे बी
समझ नहीं आ रहा होगा, उसको लगता होगा कि ये सेम वही ऐसी बातें कर जैसे मेरे पेरेंट्स बात नहीं। बट एक बात बताऊं, पेरेंट्स कभी नहीं बोलते कि तुम साइड बाय साइड जॉब करो या को करिकुलर एक्टिविटीज। लाइक व्हेन इट वाज माय टाइम, आई रिमेंबर आई टोल्ड माय फादर वंस दैट आई गॉट सिलेक्टेड समवेयर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट को-करिकुलर, आई एम टॉकिंग अबाउट मतलब पढ़ाई पे ध्यान दे। नहीं, जस्ट होल्ड अ सेकंड, आई व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो आई गॉट वर्क अपॉर्चुनिटी समवेयर एंड आई टोल्ड माय फादर अबाउट इट कि आई हैव गॉट सिलेक्टेड हियर, तो आई वांट टू वर्क हियर। तो ही टोल्ड मी व्हाट अबाउट योर कॉलेज? आई सेड इट्स माय जस्ट लास्ट 2 semesters and I don't go to college that frequently, so it's okay, मैं manage कर सकती हूँ। He was like, no, what's the need, it's going to impact your studies, तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, is your degree right now important or your work is important? And right now I want to ask my father कि मैं अभी 4 साल बाद अप्लाई कर रही हूँ कहीं पे and they are asking for experience. They are asking कि थ्रू आउट द डिग्री तुमने क्या किया apart from it, right? They are not even telling me कि तुमने सिर्फ स्टडीज पे ध्यान, क्योंकि अगर मैं स्टडीज पे ध्यान भी दिया उसके बाद भी मेरे पास काफी स्किल्स नहीं है, सिर्फ वो थ्योरी रटना और वहां से बाहर निकलना वाज नॉट इनफ। एक्चुअली क्या होता है कि कॉलेज डेज में भी 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, सीरियस स्टूडेंट्स एंड नॉन सीरियस स्टूडेंट्स। फॉर अस नॉन सीरियस स्टूडेंट्स, जो मैं खुद को कंसिडर करती हूँ दैट बस फन मस्ती मजाक में ही वो टाइम स्पेंड करना ज्यादा हमें प्रेफर किया, कि ना कि हम ज्यादा नॉलेज गेन कर पाते हैं या अपने प्रोजेक्ट्स में ज्यादा ध्यान दे पाते। मेरा क्या था, मैंने प्रोजेक्ट किया था तो उसमें क्या था, मतलब स्टडी करनी थी ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम बगलियाहाट टू किशनपुर। तो हमने क्या किया, वो जस्ट हमने स्टडी की थी वो बस हमने पेपर पे स्टडी किया, हम ना वहाँ पे गए ना कोई चीज देखी। एक्चुअली हमें एक फाइल दी गई जिसका हमें बोला कि इसका प्रिंट आउट निकालो और कॉपीज आप जितने भी ग्रुप में मेट्स हो सबके लिए कॉपी निकालो, सबमिट करवा दो। डोंट ब्लेम योर टीचर्स फॉर दैट। You guys were not even interested. वो तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए जो तुम्हारा टीचर था, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर था, कि उससे तुम्हें कहा कि छपा दो फाइल। नो, इफ आई रिमेंबर अबाउट दैट टाइम, वाइल मैंने भी उतना कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, पर मैंने एक प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत सीरियसली किया जो मैंने ग्यामन में किया था। तो उस टाइम के ड्यूरिंग तुम घर पे होती थी एंड मी एंड अदर फ्रेंड वी यूज्ड टू गो आउट फॉर द प्रोजेक्ट। तो उस टाइम के ड्यूरिंग मुझे याद है मैंने तुम्हें कहा कि यार तुम क्या कर रही हो, तुम तो कोई प्रोजेक्ट ही नहीं कर रही हो, कुछ नहीं कर रही हो। एंड यू वाज लाइक नहीं यार हो गया। बट व्हाई डू यू थिंक दैट आई एम प्लेइंग ए ब्लेम गेम हियर? इट्स नॉट ब्लेम गेम। मैं उस चीज को कंसिडर कर रही हूँ कि लाइक वो हमारी गलती थी। ओके दैट वाज आवर मिस्टेक कि हमने आई मिसअंडरस्टूड यू। एग्जैक्टली। सो वो हमारी गलती थी उस टाइम पे कि हमने प्रोजेक्ट में उतना काम नहीं किया, जो कि आगे मैंने अपने रिज्यूमे में मेंशन किया है कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया है। एंड व्हेन आई वाज आस्क्ड अबाउट दैट प्रोजेक्ट, तो मुझे कुछ नहीं पता था उसके बारे में। इवन कि मैंने इतनी भी बड़ी गलती कर दी, मैंने वो प्रोजेक्ट फाइल कभी खोली भी नहीं, देखी कि अंदर तुम्हें तो नाम भी नहीं याद था। When you were making your resume, you didn't remember कि what was the name of the project. And I asked my group mate that what was that project, and he messaged me project का नाम and location, तो मैंने वही छपा दिया। Exactly. I'll tell you about myself. I did my industrial training somewhere here in Jammu, जहाँ पे construction of it was a local road. So I was being asked by a recruiter that you have mentioned this industrial training here. Tell me something about it. What did you do there? Guess what? All that I could say was, sir, there was a construction of local road. He said, okay, that's already mentioned here. What else? और तुम वहाँ पे थी और उनको देख रही थी। मैंने कहा कहता क्या किया? मैंने कहा सर सर्वे किया। सर्वे वो तो करना ही था अगर रोड बनानी, फिर क्या किया? मैंने कहा सर फिर मिक्सचर हो रहा था वो डाल रहे थे। Exactly, you were just watching. I was totally blank because मैंने क्या किया था, मैं 2 दिन वहाँ गई हूँ, मैंने फोटो क्लिक करवाई है फाइल पे पेस्ट करने के लिए, और मैं गई वहाँ पे वो मेजरिंग टेप पकड़ा, फोटो क्लिक करवाई, वो फोटो उठा के मैंने फाइल में छपाई, एंड दैट वाज ऑल माय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। If I remember about that photo, your teacher asked you that side पे चप्पल पहन के कौन जाता है? Yeah, I remember. It was actually शिवांग सर, हमारे टीचर थे वो। I mean उन्होंने वाइवा करना था, तो उन्होंने वो फोटोग्राफ देखी उस पे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि is this how you went there for the industrial training? कौन सा सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट चप्पल पहन कर जाता है? चप्पल पहन कर जाता है वहाँ पे? What slippers there? Construction पे पोल तार exactly other things होती हैं। हाँ, तो वो मतलब वो मैंने इतनी बड़ी वो ब्लंडर कर दिया था ना कि पिक पोस्ट करी और नीचे मैंने स्लीपर्स डाले हुए हैं, बिकॉज वो मैं कैजुअल में उठ के चली गई थी जस्ट फॉर द क्लिकिंग पिक। तो उन्होंने वो नोट किया, उन्होंने मुझसे वो बोला कि ये तुमने क्या किया है। दो जब वाइवा हो रहा होता था एकदम से वाइवा के रूम के बाहर क्या किया मैंने, पूरा वो ना गूगल मारना कि अच्छा ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो क्या, एंड वो नॉलेज दैट्स अगेन थियोरेटिकल नॉलेज, वो तुम्हें कितने टाइम तक याद रहेगी? जब तुमने पढ़ा एक नेक्स्ट 1-1.5 घंटे तक तुम्हें याद रहेगा तुमने क्या पढ़ा था। जब तुम प्रैक्टिकली कोई चीज करते हो ना वो तुम्हें कभी नहीं बोल सकते, राइट? हाँ, ये बात सही है। और हमने प्रैक्टिकली अपने कॉलेज की ड्यूरिंग आई डोंट थिंक सो मैंने कुछ किया है। आई डोंट नो अबाउट यू। मैं ग्यामन का प्रोजेक्ट किया था मैंने, एक वो क्या था वो, इट वाज एक्चुअली लेट इट बी, डोंट रिमेंबर, लेट इट बी। बेसिकली इन केस एज आई सेड कि आई डोंट नो कि कौन सुन रहा है और कौन किस सिचुएशन में है राइट नाउ, बट ऑल आई कैन सजेस्ट देम इज दैट वी आर समबडी हु हैज फेस्ड इट, दैट
हमारे दिमाग में भी यही था कि 4 साल ग्रेजुएशन के बाद हम यहाँ से निकल के विल बी अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड दैट वी ट्राइड एज वेल, है ना. मतलब जब हमने कॉलेज से निकले 3-4 महीने तक हमने ट्राई किया और देखा कोई जॉब नहीं आ रही है, फिर देखा आ रही है, फिर वापस ली जा रही है, फिर देखा आ रही है जो उधर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सैचुरेशन बहुत ज्यादा है. और ये भी अक्सर देखी गई है चीज के लाइक जो भी हम स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं राइट नाउ, तो उनको क्या लगता है 4 साल बाद वो इंजीनियर्स बन गए. यार मेरी दादी मुझे इंजीनियरिंग के ड्यूरिंग जब पूछते थे ना कि उनको लगता था शायद मैं इंजीनियर बन गई. जब मैंने क्रैक दैट JKCT एग्जाम जिसकी आज रद्दी भर की इंपॉर्टेंस नहीं है, तो शी यूज टू आस्क मी कि मैंने सुना तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो गया है, तुम लग गई क्या इंजीनियर. सही बोलो तो लगता है मुझे भी शायद वो कंफ्यूजन 3-4 साल तक था. अब जाके मुझे क्लियर हुआ कि मैं इंजीनियर नहीं बनी हूँ, जस्ट ग्रेजुएशन. होप क्लियर हो गया. अब क्लियर हो गया. मेरा पता नहीं बट मेरी दादी को जरूर क्लियर हो गया बिकॉज शी नाउ गेट्स टू हियर कि अब वो किसी से पूछती है ना वो क्या कर रही है, तो माई फादर टेल्स हर कि शी इज लुकिंग फॉर जॉब. ओके, अब उनको पता चला, अब उनको क्लियर हो गया कि ये कोई इंजीनियर नहीं बनी थी, ये पढ़ ही रही थी, अब जाके इसको जॉब करनी है. बट दिस वाज नॉट द केस विथ मी. मेरे घर पे सबको पता था कि कोई इंजीनियर नहीं लगी है, वो बस अभी स्टडीज ही कर रही है. सो दिस इज नॉट द केस विथ मी. एटलीस्ट वेल इन दैट केस दे माइट बी एक्सपेक्टिंग यू नाउ कि अब तुम जेई लगो. हाँ, अब मैं जेई, बिकॉज तब अब उनको लग रहा था कि तुम 4 साल पढ़ रही थी, अब वो श्योर होंगे तुम जेई बनकर ही वापस आओगी. हाँ, यस. बट अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा नहीं हो रहा है. आई डोंट नो आगे चल के क्या होगा. See, I won't say that government jobs are totally impossible. It's not impossible, but it's very difficult. Prior to the conditions that are currently in our country, that economy is so down, youth बहुत ज्यादा है, सैचुरेशन कंपटीशन बहुत हाई है, और जो जॉब्स आ रही हैं उनकी श्योरिटी नहीं है. वो आज होती हैं और कल को होती ही नहीं है. एग्जैक्टली. बट दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू सिट होम टिल देन और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो एज वी आर डूइंग. जैसे मैंने मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स आगे पीछे मैं सबको पूछ रही हूँ क्या कर रहे हो, सब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. अब मुझे बताओ, इट्स लाइक वी वर 120 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास. फिगर अबाउट द बैच, मैं सिर्फ अपनी क्लास की बात कर रही हूँ. वी वर 120 स्टूडेंट्स देयर. अब तुम मुझे बताओ 120 बच्चा पढ़ रहा है राइट नाउ अकाउंट असिस्टेंट के लिए. मोस्ट प्रोबेबली अकाउंट असिस्टेंट के लिए. तुम्हारी क्लास से भी 60-70 बच्चे लगा लो जो पढ़ रहे होंगे अकाउंट असिस्टेंट. आई थिंक एक ही बैच में तुम एक ही बैच में लगा लो. हमारे एक छोटे से कॉलेज में एक ही बैच में से राइट नाउ 1000-1500 बच्चे जो है अकाउंट असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हैं. एंड गेस व्हाट वैकेंसी कितनी होगी? एट मैक्स 1000 होगी. और तुम इमेजिन करो, नहीं शायद से 800. आई थिंक 800. योर फादर एक्चुअली, नॉट माय फादर. He called you and no, he called you recently and told you, are you applying for that and preparing for it because there are 800 vacancies, you know. And you know what I told him? Yeah. मैंने बोला कि sorry, I'm not applying for that post, I'm not interested. And he was like क्यों ऐसा क्या? मैंने कहा I'm just not interested. मेरे साथ तो there's a joke on me over this since I have been teaching somewhere for this accounts assistant as in chemistry. So people think that I am already prepared for it, and now I'm teaching people. Okay. Though I'm prepared, I'm only prepared in the chemistry part. अगर वो सिर्फ वो पूछते हैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि नहीं है. They have the subjects like economy, polity, काफी subjects है. अब तो मुझे बताओ for somebody who is engineering graduate जो किसी और फील्ड से है, now all of us are applying for this. अब तो मुझे बताओ वहाँ अकाउंट्स है, वहाँ पॉलिटी है, वहाँ जनरल साइंस है, कैसे होगा? हर फील्ड से हर लोग है. लाइक अगर हम जो इंजीनियरिंग वाले होंगे मे बी दे आर गुड एट मैथ्स. ओके, जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के होंगे मे बी दे आर गुड एट हिस्ट्री, और जो बाकी सब्जेक्ट के होंगे लाइक MBA BBA वाले दे आर गुड एट अकाउंट्स. तो हर जगह से लोग आ रहे हैं. एग्जैक्टली. एक ही फील्ड से लोग आ रहे हैं. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट 4th क्लास वैकेंसीज जो अभी रिसेंटली आई. मतलब PhD स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है 4th क्लास वैकेंसी के लिए. व्हाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दैट गाय दैट गर्ल जो PhD के लिए होकर अप्लाई कर रही है, बिकॉज दैट पर्सन हैज नेवर एक्सप्लोर्ड हरसेल्फ और हिमसेल्फ इन टर्म्स ऑफ एनी अदर जॉब्स. Because all he thinks is that he's meant for a government job. So it doesn't matter if it's a peon post, it's a clerical post. वो PhD होकर ना उसमें जाने की कोई रेडी है. क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं किया. और अब क्या आ गई है, अब जो 4th क्लास जॉब्स आ रही है उन पे शायद स्ट्रिक्टली लिख के था. हाँ that you cannot apply if you're somebody if you're graduate, right? Exactly. If you're above अगर आप graduate होंगे नहीं, just 12th पास होना चाहिए. That's it. Just 12th पास होना चाहिए. Exactly. मतलब they are mentioning it क्योंकि क्या हो रहा है कि PhD स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उस. I think we should get out of this zone now that government job is all that we have, and while being in our schools and while being in our college we have to learn all the skills. When I say this skills जो कि हम बार-बार mention कर रहे हैं, but it's like very confusing कि skill बोल रहे हैं, बात क्या है skill के बारे में. It's like first of all, while you're in a school, be very much active. Active in the sense कि even if you're an introvert, you're an extrovert, doesn't matter. You have to keep participating in every competition there, every co-curricular activity there. And while you're in a college, keep investing yourself into
into some projects, into some internships, and if possible do side by side some part-time jobs, so that once you get out of your engineering or once you get out of your graduation, you have something to show to a recruiter that this is what I have done. प्रोजेक्ट से मुझे एक बात याद आई कि जब मेरा प्रोजेक्ट हो रहा था तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि व्हाट आर यू डूइंग इन योर प्रोजेक्ट. मैंने कहा आई एम डूइंग नथिंग, दे आर डूइंग ऑल द वर्क फॉर मी. तो यू नो आई फ्लेक्स लाइक आई एम डूइंग नथिंग, दे आर डूइंग ऑल द वर्क फॉर मी. और क्या वो उसने मुझे बोला कि यू विल रिग्रेट इट. तो मैंने बोला नहीं, आई एम चिलिंग, मैं कोई रिग्रेट नहीं करूंगी. बट आई थिंक इफ ही इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, लेट मी टेल यू आई एम regretting it now. आई एम रिग्रेटिंग इट नाउ. यू आर राइट. तो मुझे अभी प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हुई क्योंकि व्हेन आई वाज आस्क्ड अबाउट दैट प्रोजेक्ट आई कुडंट से एनीथिंग, यू नो. Exactly, because मैंने किया ही नहीं है. बिकॉज मैंने किया ही नहीं था. हाँ, तब तुम खुश हो रही थी कि मुझे छुट्टी मिल रही है and I can that sit home. yes, and that made me realize that अगर मैंने अपने कॉलेज डेज में हर एक प्रोजेक्ट में या जो भी हम वहाँ पे करवाया गया था हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया होता, तो अभी राइट नाउ मेरे पास कुछ ना कुछ भी नो होता रिज्यूमे में डालने के लिए होता. बट माई रिज्यूमे इज कम्प्लीटली यू नो It's a white paper. not a white paper, but It just mentioning your name and your education. No, my resume lacks experience. Exactly, My experience. resume lacks that experience. Yeah, exactly. You know, since we have been all the time talking about these skills, so I would suggest, or in fact we would suggest anybody who's listening to it and is currently in school or in college and looking for a job or something like that, first of all, be active very much and participating all the co-curricular activities that you're finding in your school. Exactly. Secondly, if you're in college, invest yourself into some good projects and keep doing research about these, and get into some internships. And there's a one more thing. If you don't want to go outside, you can do freelancing, you know. There are many options. In case you can explore yourself, there are lots of options here. अगर कोई ऐसा बंदा है कि लाइक जो उसको बाहर रहना अच्छा नहीं लगता है, he or she can do freelancing. मुझे पता There है are a lot of options for freelancing. हमें ये चीज़ भी फेस नहीं करनी पड़ती अगर J&K में कॉर्पोरेट सेक्टर ठीक ठाक होता. Exactly, मैं थोड़ा सा ही होता, हम लोगों को नहीं जाना We are पड़ता. so unfortunate Why about somebody from Bangalore or from Delhi isn't facing this issue that all he's looking for is a government job, because he doesn't have to shift anywhere. No, So exactly. he'll be अगर उसके पास government job नहीं है option, he'll be applying somewhere near his home, कहीं पे भी apply करेगा. But for us, for people like us who come from very small states and जैसे हमारा है, it becomes UT, very difficult. it becomes very difficult because we have to relocate to other locations जो हमारे लिए difficult होता है. और उसके बाद it's like जैसे वो fresher को salary provide कर रहे हैं, that's not enough, right? So everybody wants कि घर पे ही बैठ के job मिले, जो कि job security first of all, secondly आपको आराम मिले. अब काम तो करना पड़ेगा यार. Either you can do very much hard work, you can be very consistent and crack a job. If that's possible for you, go for it. Obviously that's the best option. And if you can't do it, you might say it कि okay, I am going to prepare for UPSC, I am going to prepare for this exam and that, but it needs consistency. बहुत ज़्यादा consistency चाहिए. And knowing that कि probability कितनी है. अगर आप 3 साल तक prepare कर रहे हो, 3 साल बाद आपको पता चलता है कि आपको नहीं मिली वो job, God forbid नहीं मिली job, उस टाइम पे आप प्राइवेट में भी अप्लाई नहीं कर सकते हो. What are you gonna show there? Why you have been for 3 years for preparing for an exam? और मुझे ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स एप्लीकेंट्स है जो भी, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो प्लीज अपना टाइम वेस्ट नहीं करो. इधर बी कंसिस्टेंट और डोंट डू इट. राइट, देयर आर ओनली टू ऑप्शंस. Be consistent. Be consistent. It's not that government job is impossible. Be consistent. It is possible. Just be consistent. ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक आज आप 2-4 घंटे पढ़ो और फिर आप 2-3 दिन बाद अपनी बुक खोलो. So that's not gonna work. At the same time, आप जिस भी फील्ड से हो एक्सप्लोर करो, उसके बारे में गूगल करो, चीजें आगे पीछे पूछो कि अगर इस फील्ड में मुझे बाद में प्राइवेट में जाना है या किसी फील्ड में मैं इंटरेस्टेड हूँ प्राइवेट में जाने के लिए, तो वो स्किल साथ साथ में सीखो. मुझे लगता है हमारे पास काफ़ी टाइम होता है. ऐसा नहीं है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब एंड यू से एट द सेम टाइम कि नो यार डूड आई डोंट हैव टाइम फॉर इट. Exactly. ऐसा कुछ नहीं है. जहाँ पे तुम फोन पे 1.5 घंटा 2 घंटा स्पेंड करते हो, वहाँ 30 मिनट्स तुम किसी ऐसी स्किल पे स्पेंड करो जो तुम्हें 1-2 साल बाद काम आने वाली है, इन केस यू डोंट गेट अ गवर्नमेंट जॉब. अभी पेंडेमिक में क्या हो रहा है यार, लाइक वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस पेंडेमिक थिंग टू, क्योंकि अभी हमारे पास काफी टाइम है. Exactly. एंड ऑनलाइन लाइक गूगल इज प्रोवाइडिंग सो मेनी कोर्सेज एंड फ्री कोर्सेज है गूगल पे. यूट्यूब पे जा सकते हो, कोर्सेरा पे जा सकते हो. यू नो देयर इज डिस्काउंट एवरीवेयर राइट नाउ. ऑनलाइन कोर्सेज के लिए सब जगह डिस्काउंट है और आपको आपकी ब्रांच का कोर्स शायद वहाँ पे मिल सकता है. यू नो मैंने खुद यूडीमी पे जाके 1-2 कोर्सेज राइट नाउ लिए हैं एंड आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट देम within a short time span. Exactly, within very short time span. And you know, coding is very necessary now. It doesn't matter which field you are in. As in government has introduced it already now कि आने वाले टाइम पे अब कोडिंग सिखाई जाएगी बच्चों. तो मुझे लगता है ये पाइथन, जावा, AI, मशीन लर्निंग वगैरह ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर doesn't matter कि आप कौन से फील्ड से हो. यस, अगर ये सब नहीं तो जो ना अपने ब्रांच के रिलेटेड, अपने ब्रांच के रिलेटेड से if you are from civil, go for Revit, go for AutoCAD, or in case you're from electrical, MATLAB, Simulink, 3D, 2D. Exactly, go for it. And side by side keep exploring yourself, keep
keep developing those good communication skills, work on your personality. That's all we can say That's about all we it. can say Because about it. if you think that 4 साल पढ़ो या आप 6 साल पढ़ो and you'll be coming out of your college and you'll be getting a government job, let That's me tell not you, gonna work. it's not gonna work. And I believe कि अगर बंदे के पास स्किल होगा और उसने अपनी पर्सनालिटी पे काम किया होगा, मुझे लगता है nobody can stop him from earning his daily bread, you know. Yes. If somebody is having skills. Now if you are an engineering graduate but skillless and a person who has not explored himself or herself, or a person who has no communication skills, who doesn't even know how to talk, you are not gonna get anything. It doesn't matter whether you're a BTech graduate, unless you're some IITian. वो तो वैसे बहुत ज़्यादा knowledgeable. That would work, yeah, exactly. See guys, it's very you know, like clear, क्रिस्टल क्लियर कि IIT से हो, IIM से हो, तो आपको कोई भी लेगा. लेकिन अब सारे जो हैं हम IIT IIM से तो नहीं हो सकते. अब जो लोकल लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे लिए अब कोई गुजारा नहीं है. गुजारा हमारा भी हो सकता है, बट ऑल वी नीड टू डू इज वी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स. We need to explore ourselves. एग्जैक्टली. अदरवाइज जैसे हम 4 साल बाद बाहर निकले और हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो इन केस यू आर एनीवन जो राइट नाउ कॉलेज में या स्कूल में है, आई वुड सजेस्ट आप राइट नाउ साइड बाय साइड कोई कोर्सेज देखिए जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, और साइड बाय साइड इन केस यू कैन डू एनी पार्ट टाइम वर्क, और यू कैन जस्ट गेट इनटू सम प्रोजेक्ट्स, यू कैन डू सम इंटर्नशिप्स, कीप डूइंग इट. Right now work from home opportunities काफी ज़्यादा हाँ, हैं. exactly. Just keep doing it, यार. In fact, keep doing Keep anything. exploring, Explain yes. yourself. Keep exploring It's yourself. not necessary that you have done graduation in this field and you cannot go into other field, right? Education is not a limit. Education is not a limit. There is no limit कि आपने इस फील्ड में ग्रेजुएशन की है तो आपको इसी फील्ड में जाना है. ठीक है, माइंड चेंज हो गया. Alright. Yes, it's Though all we can right. talk about it, we have a long discussion over this as well कि कौन engineering choose करता है और क्यों करता है. Let's not talk it right here. So guys, this is probably all that we wanted to discuss in this podcast, that we have faced it and we don't want कि कोई और face करे, and that's all we could suggest to someone. phone में आप chatting कर रहे हो, जो कि हमारे parents बोलते थे पहले से, और हम इनफैक्ट मुझे हंसी आ रही है बोलते हुए कि फ़ोन में से कुछ नहीं मिलेगा. फ़ोन में से बहुत कुछ मिलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. फ़ोन में से ही मिलेगा, लेकिन सही जगह आप यू शुड नो वेयर टू इन्वेस्ट योरसेल्फ. कीप डूइंग इट. सही साइड से मिलेंगे ना. Exactly. Just channelize your hard work into a right track. You will get it, definitely. And don't just keep government jobs as your only option, because the competition, the saturation, and everything, all of it, it's so much that you cannot, like, I won't say it's impossible, but it's very difficult. Either you have to be very much consistent. So that was all that we had to discuss in this podcast. All right, guys, you can listen to this podcast on Spotify, Google Podcasts, Anchor, and as well as on YouTube. Please listen to it, share, and subscribe. We are available on Instagram at news.daily and on Twitter as musings.daily. Keep listening, keep learning new skills, and I'll see you soon in very next episode. And keep exploring. Bye-bye. Take care.